ضمنی انتخاب کی بات کریں تو کراچی کے حلقہ NA-245 کے ضمنی انتخاب کے لیے انتخابی مہم کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ ضابطہ اخلاق کے مطابق 24 گھنٹے قبل امیدوار اپنی تمام سیاسی سرگرمیاں ختم کرنے کا پابند ہے۔ انتخابی مہم کے 2 روز انتخابی سرگرمیاں عروج پر نظر آئیں گی۔ تفصیلات کے لیے بات کریں گے جاوید قائم خانی سے۔ جی جاوید، NA-245 کے ضمنی انتخابات کے سلسلے میں انتخابی مہم کا آخری روز بھی ختم ہوا۔ ضابطے کے مطابق جو ہے وہ 24 گھنٹے پہلے تمام تر سیاسی ایکٹیویٹیز اور انتخابی مہم کے سلسلے میں کی جانے والی کارنر میٹنگز، ریلیز اور دیگر پروگرام جو ہے انہیں ترک کرنا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں آج تمام سیاسی پارٹیوں کی جانب سے جو ہے وہ 12 بجے تک جو ہے وہ سیاسی دنگل سجا رہا، گہمہ گہمی عروج پر رہی۔ تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے جو ہے وہ ووٹرز کو اپنی جانب راغب کرنے کے لیے اور ووٹنگ کے دن جو ہے وہ گھروں سے نکلنے کے لیے راضی کرنے میں دکھائی دیا، جوڑ توڑ دکھائی دیا۔ محلوں میں، علاقوں میں، گلی محلوں میں جا کر جو ہے وہ کارنر میٹنگز کی گئی۔ اگر بات کریں تو ایک بار ملتوی ہوا یہ NA-245 کے ضمنی انتخاب موسم کے خرابی کی باعث کراچی میں، جبکہ اب ووٹنگ کا اور بیلنگ کا دن جو ہے وہ 21 اگست ہے اور اس کے لیے 24 گھنٹے اب رہ گئے۔ 24 گھنٹے کا وقت جو ہے وہ بیچ میں درمیان میں رکھا جاتا ہے تاکہ ضابطۂ اخلاق کے مطابق تمام سیاسی ایکٹیویٹیز ختم ہو جائیں اور بیلٹنگ پیپر، بیلٹنگ باکس اور دیگر مواد جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن تک پہنچانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پریزائڈنگ افسر، ریٹرننگ افسران اور دیگر لوگوں کو جو ہے وہ تمام عملے کو اس پولنگ اسٹیشن تک پہنچانے کا یہ سلسلہ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلے روز اس ٹائم پر 8 بجے جو ہے وہ پولنگ شروع کی جاتی ہے اور جو بغیر کسی وقفے سے 5 بجے جاری رہے گی۔ اسی طرح 21 تاریخ کو 21 اگست یعنی کہ کل جو ہے وہ پولنگ ہوگی۔ سیاسی گہمہ گہمی عروج پر یوں تھی، یہ واضح رہے کہ یہ نشست جو ہے وہ خالی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر عامر لیاقت کی وفات کے باعث خالی ہونے والی نشست پر جو ہے ضمنی انتخاب کیا جا رہا ہے اور عامر لیاقت جو ہے PTI کی ٹکٹ سے جو ہے وہ منتخب ہوئے تھے، قومی اسمبلی کے ممبر۔ اس کے بعد اب دیکھنے میں آیا تو یہاں پر مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے امیدواروں کو کھڑا کیا گیا ہے۔ دوسری جانب جیسے 240 میں ضمنی انتخاب میں دیکھا گیا کورنگی کے اندر جو ہے وہ TLP نے بڑا ٹف ٹائم دیا MQM کو اور چند ووٹوں سے ہی جو ہے وہ برتری ہوئی تھی MQM کی، لیکن اس بار جو ہے یہ دیکھنے میں آ گیا یہ جو PIB حلقہ ہے یہاں پر ووٹرز اور سپورٹرز جو ہے وہ TLP کے بھی دکھائی دیتے ہیں، فاروق ستار کے بھی ہیں اور MQM اپنی پرانی سابقہ سیٹ جو ہے وہ بھی بچانے کے لیے تگ و دو کرے گی۔ تو اس لیے گہمہ گہمی عروج پر تھی، دیکھتے ہیں کہ کون جو ہے ووٹر کو اس 21 اگست کو باہر نکالنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ اس لیے کہ چھٹی کا دن اور ضمنی انتخاب میں جو ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ ٹرن آؤٹ بہت کم ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں مارکا کون لے کر جاتا ہے، لیکن سیاسی طور پر جو ہے وہ ووٹرز کو اپنی جانب راغب ہے، ووٹرز کو گھر سے 21 اگست کو نکالنے کے لیے، اس بات پر راضی کرنے کے لیے جی ٹھیک ہے جاوید، آپ کا بہت شکریہ۔ کراچی کے حلقہ NA-245 کے ضمنی انتخابات کے لیے سیاسی جماعتوں کی انتخابی مہم اختتام پذیر ہو گئی ہے۔ آخری روز حلقے میں گہمہ گہمی عروج پر نظر آئی۔ چیئرمین باکس زمین پارٹی مصطفیٰ کمال کی قیادت میں بھی انتخابی ریلی نکالی گئی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کراچی کے حلقہ NA-245 میں ضمنی معرکے کے لیے انتخابی مہم کا وقت ختم۔ تمام سیاسی جماعتوں نے ووٹرز کو لبھانے کے لیے خوب دعوے اور وعدے کیے۔ انتخابی مہم کے آخری روز چیئرمین PSP مصطفیٰ کمال کی قیادت میں بھی پاکستان ہاؤس سے انتخابی ریلی نکالی گئی۔ ریلی سے خطاب میں مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ وسائل نہ ہونے کی وجہ سے اپنی جیب سے انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ حفیظ الدین سے بہتر کوئی امیدوار نہیں۔ انہوں نے انتخابات رینجرز اور فوج کی نگرانی میں کرانے کا مطالبہ بھی کیا۔ ہماری پارٹی میں اگر بہت سارے لوگ محنت کرنے والے ہیں لیکن حفیظ بھائی ان سب میں نمایاں ہیں۔ اس آدمی کو، اس شخص کو ہم نے اس NA-245 سے آپ کا کینڈیڈیٹ منتخب کیا ہے، آپ کا کینڈیڈیٹ بنایا ہے۔ ریلی نرسری سے شروع ہو کر مختلف علاقوں سے ہوتی ہوئی لائنز ایریا پہنچ کر ختم ہوئی۔ انتخابی مہم اختتام پذیر ہونے کے بعد سیاسی جماعتوں کی نظر اب الیکشن ڈے کی حکمت عملی پر مرکوز ہے۔ کراچی کے حلقہ NA-245 کے ضمنی انتخابات کا دنگل اتوار کو سجے گا۔ حلقہ NA-245 کے لیے تحریک انصاف کی انتخابی مہم زور و شور سے جاری رہی۔ تحریک انصاف کے قائدان کی قیادت میں ریلی مزار قائد سے نکالی گئی، جس میں عمران اسماعیل، خرم زمان، امیدوار محمود مولوی سمیت دیگر شریک ہوئے۔ رہنماؤں نے انتخاب جیتنے کے عزم کا اظہار کیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔
کراچی میں حلقہ NA 245 کے لیے انتخابی مہم آخری روز بھی جاری رہی۔ تحریک انصاف کی مقامی قیادت کی جانب سے مزار قائد سے ریلی نکالی گئی۔ ریلی نمائش چورنگی، سولجر بازار، نشتر روڈ، پاکستان کوارٹرز، پٹیل پاڑہ، مارٹن کوارٹرز، جہانگیر روڈ، جمشید روڈ، پرانی سبزی منڈی سمیت مختلف مقامات سے گزری۔ ریلی میں PTI امیدوار محمود مولوی، سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل، خرم شیر زمان و دیگر بھی موجود تھے۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمران اسماعیل نے کہا کہ NA 245 کا الیکشن جیت کر عمران خان کو تحفہ دیں گے۔ 21 تاریخ کو محمود مولوی انشاءاللہ جیت کر یہ سیٹ عمران خان کے تحفے میں دیں گے، اور اس کے بعد 28 تاریخ کو ہمارے بلدیاتی نمائندے یہیں سے انشاءاللہ فتح یاب ہوں گے اور پاکستان تحریک انصاف کا میئر کراچی میں نامزد ہوگا۔ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل نے دعویٰ کیا کہ ہم اسلام آباد بند کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، عمران خان کو مائنس کرنے والوں کو ناکامی ہوگی۔ ہم اسلام آباد بند کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ امن و امان اور تفاہم و تفہیم سے معاملہ طے ہو۔ عمران خان کے سامنے بلاول، مولانا شریفوں کا نہیں، نواز شریف آئیں پاکستان انہیں لگ پتہ جائے گا۔ کراچی کے حلقہ NA 245 کی انتخابی مہم کے آخری روز تحریک لبیک پاکستان نے حلقے میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ TLP کے مرکزی امیر حافظ سعد حسین رضوی کی قیادت میں ریلی نکالی گئی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رکن اسمبلی عامر لیاقت کے انتقال پر خالی ہونے والی نشست پر ضمنی انتخابی مارکا۔ تمام سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے اور ووٹرز کو اپنی جانب راغب کرنے میں مصروف نظر آئیں۔ تحریک لبیک پاکستان نے بھی حلقے میں بھرپور سیاسی قوت کا مظاہرہ کیا۔ تحریک لبیک کے مرکزی امیر حافظ سعد رضوی کارکنان کا لہو گرمانے خصوصی طور پر کراچی پہنچے اور سبزی منڈی سے نکالے جانے والی ریلی کی قیادت کی۔ TLP رہنما اور رکن سندھ اسمبلی قاسم فخری نے کہا کہ کراچی کو دوبارہ روشنیوں کا شہر بنائیں گے۔ الحمدللہ کراچی میں میئر تحریک لبیک پاکستان کا ہی ہوگا اور ہمارے جذبات بہت بلند ہیں۔ ہم عوامی خدمت کے لیے بے چین ہیں۔ ہمارے کارکنان، ہمارے ذمہ داران، ہمارے جو چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلر ہیں وہ بے چین ہیں اس تباہ پاکستان کو اور یہ کھنڈر نما کراچی کو انشاءاللہ گل گلزار بنانے کے لیے اور اس کو روشنیوں کا حقیقی شہر بنانے کے لیے۔ حلقے میں TLP کے امیدوار احمد رضا بھی اس موقع پر پر امید نظر آئے۔ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں، یہ ہمارے NA کے حلقے کی پبلک ہے جنہوں نے نکل کر یہ بتا دیا کہ ہم ہر اعتبار سے TLP کے ساتھ ہیں، اور میں آپ کو گراؤنڈ پر اتر کر یہ بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ TLP کا رزلٹ پہلے ہی آ چکا ہے۔ TLP کو الحمدللہ اللہ رب العالمین کے فضل سے کامیابی ملی ہے۔ انتخابی ریلی نیو ٹاؤن، جیل، چورنگی، PIB اور دیگر علاقوں سے ہوتے ہوئے شارع قائدین پر اختتام پذیر ہو گئی۔ فراز کے ساتھ جاوید قائم خانی، City 21۔ الیکشن مہم میں حصہ لینے کے لیے وزیر محنت و افرادی قوت سندھ سعید غنی اور وزیر برائے ترقی نسواں شہرہ رضا نے اپنی وزارتوں سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ اپنے ٹویٹر پیغام میں سعید غنی کا کہنا تھا کہ انہوں نے الیکشن مہم میں حصہ لینے کے لیے استعفیٰ وزیر اعلیٰ سندھ کو بھجوایا ہے جو تاحال منظور نہیں ہوا۔ بحیثیت صدر PP کراچی میری یہ خواہش ہے کہ میں کارکنوں کے ساتھ الیکشن مہم میں حصہ لوں۔ دوسری جانب صوبائی وزیر ترقی نسواں سیدہ شعلہ رضا نے بھی اپنی وزارت سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ صوبائی وزیر سیدہ شعلہ رضا نے بلدیاتی انتخابات کی مہم میں حصہ لینے کے لیے اپنا استعفیٰ وزیر اعلیٰ سندھ کو پیش کیا۔ دونوں رہنماؤں کا کہنا ہے کہ استعفے کی منظوری کا فیصلہ پارٹی قیادت اور وزیر اعلیٰ کریں۔ کراچی میں ضمنی اور بلدیاتی الیکشن میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے پولیس نے رینجرز کے ہمراہ فلیگ مارچ کیا۔ ضلع ایسٹ میں امن و امان کی فضا قائم رکھنے اور ضلع بھر میں قانون کی بالادستی کو برقرار رکھنے کے لیے پولیس اور رینجرز نے مشترکہ مارچ کیا۔ فلیگ مارچ کی قیادت SSP ایسٹ عبدالرحیم شرازی نے کی۔ پولیس حکام کے مطابق فلیگ مارچ کا مقصد الیکشن کے دوران سیکیورٹی برقرار رکھنے اور عوام کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔ اس کے علاوہ ضلع بھر میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنا اور عوام میں تحفظ کا احساس اور شرپسند عناصر کو یہ پیغام دینا کہ ایسٹ پولیس اور تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے شرپسند عناصر پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں اور ہر طرح کے چیلنج سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ عوام کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر دیا گیا۔ MKM رہنما خالد مقبول صدیقی کا نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ صدر آئین اور قانون کا محافظ ہوتا ہے۔ بولے مردم شماری سے پہلے ہی عدالت چلے گئے۔ پاکستان کے آئین، قانون، وزیر اعظم صاحب صدر مملکت سے آئین کے محافظ ہوں، قانون کے محافظ ہوں، پاکستان کے ضمیر سے سوال کرتے کیا آپ ہمیں صرف یہ تو بتا دیں کہ ہم انصاف کے لیے اور حق کے لیے کہاں رجوع کریں، کہاں پر جا کر اپنا سوال رکھیں، کہاں پر جا کر اپنا مقدمہ رکھیں۔ سب سے پہلے تو
तो गुज़श्ता 50 साल में हर होने वाले मर्दम शुमारी में सिंध के शहरी इलाकों, खास तौर पे कराची की आबादी को कम से कम करके दिखाया गया। हर बार डंडी मारी गई, पिछली दफा डंडा मार दिया गया। हम पिछली दफा के मर्दम शुमारी की आगाज से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे। आज तक सुप्रीम कोर्ट में मर्दम शुमारी के हवाले से हमारा मुकदमा सिसक रहा है पिछली हुकूमत के साथ, क्योंकि हमारा ये मुतालबा था कि दोबारा से सिंध के शहरी इलाकों को गिना जाए, और अगर सिर्फ सिंध के शहरी इलाकों में मर्दम शुमारी दोबारा कराने में मुश्किलात हो तो पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस मुतालबे को पूरा किया गया है। आज आपके जरिए फिर मैं सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर हमारा ये मुकदमा है, चीफ जस्टिस साहब से, हुकूमत से, मुमलिकत से, रियासत से सबसे मौदबाना दरख्वास्त कर रहा हूं कि इस दफा महाजरों को आप सही गिने। आपने एक तो हमें गिना कम है, फिर डिलिमिटेशन और वोटर लिस्ट के जरिए आपने हमें आधा गिना और नुमाइंदगी 25% कर दी है। इस सूरत में यहाँ सिंध के शहरी इलाकों में होने वाले इंतखाबात की क्या हैसियत बाकी रह जाती? पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर इस तरह के इंतखाबात को कौन कबूल कर सकता है? कौन सा आइन और कानून इसको तस्लीम करेगा? लेकिन इस प्रोसेस में जो मुद्दत इंसाफ के लिए चाहिए, इंसाफ के हुसूल के लिए चाहिए, अगर वो नहीं दी जाएगी तो 28 तारीख को होने वाले इंतखाबात के नताइज को सिंध के शहरी इलाके तस्लीम नहीं करेंगे। महकमे मौसमियात ने कराची में मज़ीद बारिशों की पेशगोई कर दी। हवा का कम दबाव सिंध में 23 अगस्त को दाखिल होगा। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि हवा के कम दबाव का सिस्टम मुल्क भर पर असरअंदाज होने का इम्कान है। बारिश बरसाने वाला सिस्टम 23 अगस्त को सिंध में दाखिल होगा। 19 से 22 अगस्त के दौरान मशरक़ी बलोचिस्तान के इलाकों में बारिशें मुतवक्की हैं, जबकि कराची और सिंध के साहिली इलाकों में 23 और 24 अगस्त को मूसलाधार बरसात का इम्कान है। शहर में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला थम न सका। मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बंदिश का कातेकार में इजाफा हो गया। शहरियों का कहना है कि बिजली आती नहीं है और बिल दुगने होते जा रहे हैं। शहर में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला थम न सका। मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटे की बिजली बंदिश जारी है। बिजली बंदिश का दौरानिया 12 घंटे से भी तजावुज कर गया। लोड शेडिंग से बेहाल शहरियों का कहना है कि दिन भर बिजली बंद रहने से कारोबार मुतासर रहता है। न काम के वक्त बिजली होती है और न आराम के वक्त घर में बिजली होती है। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, नार्थ नाज़माबाद, न्यू कराची में 12 घंटे से जायद की बंदिश जारी है। लाइट जो है हमारे तकरीबन 12 घंटे लाइट जारी है, 3 घंटे लाइट जारी है। उसके बावजूद भी गरीब आदमी क्या करेगा? हम बहुत परेशान हैं, इसलिए कि इलेक्ट्रिक और या हुकूमत और उनको कह रहे हैं कि हमारे साथ नाजायज़ हो रहा है। अख्तर कॉलोनी, मंजूर कॉलोनी, महमूदाबाद, चनेसरकोट में रिहायशी और कारोबारी मराकज़ में बिजली की आंख मचोली जारी है कि इलेक्ट्रिक हुकाम ने शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग की तरदीद कर दी है। कैमरामैन काशिफ खान के हमरा हबीब खान, सिटी 21। कराची में शदीद बारिशों से नदी में तुगयानी के बाद कोरंगी कॉजवे 7वें रोज़ भी ट्रैफिक के लिए बंद है। नदी में फंसने वाली 3 बच्चियों को पुलिस एहलकार ने अपनी जान खतरे में डालकर बचा लिया। पुलिस चीफ ने एहलकार के इकदाम पर शाबाशी दी। सिकंदर के लिए 25,000 रुपये नकद और तरीफी सनद का भी ऐलान कर दिया। कराची में शदीद बारिशों के बाद नदी में तुगयानी के सबब शहर को कोरंगी सनती एरिया से मिलाने वाली अहम सड़क कॉजवे 7वें रोज़ भी ट्रैफिक के लिए बंद है। सड़क अबूर करने की कोशिश में 3 बच्चियां नदी में फंस गईं। बलोच कॉलोनी थाने में तैनात पुलिस एहलकार ने अपनी जान पर खेल कर पानी के तेज़ बहाव के बावजूद बच्चियों को बाहिफाजत निकाल लिया। पुलिस के मुताबिक तीनों बच्चियां अतराफ की रहायशी हैं। एडिशनल आईजी कराची का कहना था कि पुलिस ने हमेशा मुश्किल हालात में आवाम की खिदमत की। उन्होंने शहरियों से इमरजेंसी में मददगार 15 को इतला करने की अपील कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि कराची में सड़कों और निकासियाब के निज़ाम को जल्द बेहतर किया जाए। उन्होंने कहा कि आवाम को उनके नुकसानात का सूबाई हुकूमत अजाला करे। बिलावल भुट्टो की सदारत में होने वाले इजलास में दरिया सिंध के राइट और लेफ्ट साइड में बारिशों के नुकसानात से मुतालिक आगाह किया। वज़ीर आला सिंध ने चेयरमैन BPP को बताया कि एक अंदाजे के मुताबिक 40 अरब रुपए का सूबे में नुकसान हुआ है। बिलावल भुट्टो ने इस मौके पर मुतासरीन की हर मुमकिन इमदाद करने, उन्हें कैंप्स में मुंतकिल करने के साथ साथ मेडिकल कैंप्स, जानवरों की वैक्सीनेशन, डायरिया, मक्खियों मच्छरों के लिए स्प्रे करवाने की भी हिदायत की। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की तमाम MPs को बारिश मुतासर इलाकों में अपनी आवाम के साथ रहने की हिदायत।
शहर कायद में बारिश के बाद शाहराह कायदीन टूट फूट का शिकार है। जगह जगह मौजूद घरों और कीचड़ के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। कराची में जारी बरसात के बाद सुलझानी से डिफेंस और हॉक्सबे से गुलशन हदीद तक सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। शहर के मरकजी इलाके में बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार के सामने से शुरू होने वाली सड़क भी इन दिनों बदतरीन हालत में है। अहम शाहराहों की जहां सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, वहीं शहरियों को भी मुश्किलात का सामना है। मुतल्लिका इदारे अवामी मसाइल में अदम दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहे हैं। कई मरतबा शिकायत की गई लेकिन कोई तवज्जो न दी गई। ये है जल्द से जल्द हालात ठीक किए जाएं ताकि आवाम सुकून से ज़िंदगी गुजारे। ये देखें किस तरह ट्रैफिक के हालात हुए हैं, आप खुद देखें कि लोगों को इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वो लोग वॉक नहीं कर सकते, आप यहाँ पर देखें। ये कि इसका काम फ़ौरन होना चाहिए और उसको आवाम के बारे में भी सोचना चाहिए। इनको सफाई होनी चाहिए, गंदगी ख़त्म हुए, ये बीमारियाँ फैल रही है, बदबू फैल रही है। सड़क तो बहुत ही हालात ख़राब हुए हुए हैं। सड़क की अबतर हालत के सबब बड़ी गाड़ियों के साथ मोटरसाइकिल और रिक्शा वालों की परेशानी भी बढ़ गई है। शहरियों ने बल्दियाती इदारों से सड़क की फौरी मुरम्मत का मुतालबा किया है। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ जावेद इकबाल, कराची। सिंध हुकूमत की जानिब से जौहर चौरंगी पर पुल और अंडरपास के तामीराती काम का आगाज़ कर दिया गया, जहां ट्रैफिक जाम के मसाइल से 2-4 जौहर चौरंगी को सिग्नल फ्री बनाया जाएगा। गुलिस्तान जौहर की जौहर चौरंगी को शहर की मसरूफ तरीन चौरंगी तस्वुर किया जाता है, जहां दिन रात ट्रैफिक का शदीद दबाव रहता है। ट्रैफिक जाम रहने से वक्त और फ्यूल का ज़िया आम सी बात है, मगर सिंध हुकूमत ने इस मसले का हल ढूंढ निकाला और अब यहां अंडरपास और फ्लाईओवर की तामीर का काम शुरू कर दिया गया है। ये फैसला तो बहुत अच्छा है। इससे ये है कि हमारा जो है ना गाड़ियों का पेट्रोल और टाइम भी बच जाएगा, पेट्रोल भी बच जाएगा। ज़्यादातर जो है ना एम्बुलेंस आता जाते हैं, हॉस्पिटल है ना, तो इस वजह से उन लोगों के लिए बहुत मुश्किलात होती है, तो आवाम के लिए। तो अब ये जब ये चीज़ बनेगा इंशाल्लाह बहुत बड़ी सहूलत हो जाएगी। मंसूबे पर 2 अरब रुपए की लागत आएगी, जिसे 18 माह में मुकम्मल किया जाएगा। शहरी इस मंसूबे को बेहतरीन करार दे रहे हैं। ये तो हुकूमत का अच्छा इकदाम है कि यहाँ पे पुल बन रहे हैं, यहाँ से पहलवान गोड से यूनिवर्सिटी रोड पे अंडरपास बन रहे हैं और जोर मोड़ से और मौसमियात रोड पे ये जो है ना फ्लाईओवर बन रहे हैं। इससे आवाम को तो रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा, तो हम लोगों को ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि जहाँ पे हम आधे घंटे में पहुँचते थे उधर हम 20 मिनट में 10 मिनट में पहुँचेंगे। ट्रैफिक नहीं रुकेगा, बाकी जो एम्बुलेंस में मरीज़ वगैरह जाते हैं उनको भी मुश्किलात नहीं होगा। मंसूबे के तहत पहलवान रोड से यूनिवर्सिटी रोड अंडरपास, जबकि जौहर मोड़ से सफूरा चौरंगी जाने वाले हिस्से पर फ्लाईओवर तामीर किया जाएगा, जिससे जौहर चौरंगी सिग्नल फ्री हो जाएगी। कैमरामैन आगा रफीक के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। अब आपको बताएं कि न्यू टाउन में डकैतियों को 2 यूट्यूबर्स को लूट लिया। मुल्जिमान दोनों यूट्यूबर्स से नकदी, मोबाइल और पासपोर्ट ले उड़े। वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है। आपको बताएं कि न्यू टाउन में डकैतों को 2 यूट्यूबर्स ने लूट लिया। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे दानियाल सैयद से। जी दानियाल, आगाह कीजिएगा। देखिए, सुबह कराची के इलाका न्यू टाउन थाने के हदूद है, जहाँ पे स्ट्रीट क्राइम की वारदात हुई है। मारूफ यूट्यूबर्स हैं माज सफदर और शहबाज सफदर, इनको लूटा गया है और वारदात के दौरान मुलजिमान न सिर्फ पासपोर्ट, मोबाइल फ़ोन, नकदी रकम और रियाल लूट कर फरार हुए हैं। मुतासिन ने पुलिस हुक्काम को फौरी तौर पर पासपोर्ट और टिकट जो है वो दस्तियाब करने के लिए दरख्वास्त की है। ये व्लॉगर्स जो हैं ये आज दुबई रवाना हो रहे थे कि इससे वारदात हुई है। फुटेज भी सामने आई, 21 न्यूज़ को मौसूल हुई है। इस फुटेज में 2 मोटरसाइकिल सवार 4 मुसल्लह मुलजिमान को वारदात करते देखा जा सकता है। पुलिस हुक्काम से कहना है कि फुटेज मंजर आम पर आने के बाद तहकीकात शुरू कर दी गई। जी ठीक है दानियाल, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान कस्टम्स की बड़ी कार्रवाई, 45 करोड़ रुपए मालियत की ममनुआ अशिया की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। कस्टम हुकाम के मुताबिक यूएई से दरामद करदा एक खेप को इस्तेमाल शुदा टायर स्क्रैप बताकर भेजा गया, जबकि जांच पड़ताल हुई तो कल में 10 में से 9 कंटेनर से दूसरा सामान निकला। तर्जुमान कस्टम के मुताबिक कंटेनर से गैर मुल्की कपड़ा, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, ऑटो पार्ट्स, फूड कॉस्मेटिक और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स बरामद हुए। बरामद शुदा इस ममनुआ सामान की लागत 453 मिलियन रुपए बताई जा रही है। बरामद सामान पर आय ड्यूटी और दीगर टैक्सों का तखमीना 400 मिलियन रुपए के लगभग है। FIR दर्ज करके एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है।
सेशन कोर्ट शर्की ने कम उम्र बच्ची के मुबैना अगवा के मुकदमे का चालान एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को भेज दिया। सेशन अदालत शर्की ने कम उम्र बच्ची के मुबैना अगवा के मुकदमे की समाअत हुई। सेशन अदालत ने पुलिस चालान मातहत अदालत को भेज दिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत नंबर 7 मुकदमे की समाअत करेगा। अदालत पुलिस चालान को मंजूर करने या मुस्तरद करने से मुतालिक फैसला करेगी। चालान में ज़्यादती और अगवा के दफ़ात शामिल की गई हैं। कराची में शहदाए करबला की याद में मरूफ ताजर मोहम्मद हनीफ की जानिब से दावत हलीम का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। कराची के मकामी हॉल में मरूफ ताजर मोहम्मद हनीफ की जानिब से दावत हलीम का खुसूसी एहतमाम किया गया। दावत हलीम में सियासी, समाजी, सहाफ़ी और कारोबारी हजरात समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर मुंतज़मीन का कहना था कि शहदाए करबला की याद में हर साल न्यास का एहतमाम किया जाता है। ये दोस्तों के साथ मिल बैठने का भी एक ज़रिया है। दावत में शरीक अफराद का कहना था कि तमाम मकतबा फ़िक्र के लोगों को एक जगह पर जमा करना और इस तरह की तकरीबात का इनेकाद लायक तहसीन है। ऐसी सरगर्मियाँ शहर में जारी रहनी चाहिए। FBCCI के साबिक नायब सदर मिर्ज़ा इश्तियाक बेग ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत सख्त फैसले किए जिसके असरात आना शुरू हो गए हैं। मुल्की मईशत अब बेहतरी की तरफ जा रही है। करंट अकाउंट खसारा भी कंट्रोल में आना शुरू हो गया है। उन्होंने IMF और दीगर ममालिक से फंड्स मिलने के बाद $200 तक गिरने की भी पेशगोई कर दी। मुल्की मईशत मुश्किलात से निकलकर बेहतरी के रास्ते पर चलने लगी। ताजिर भी हालात में बेहतरी के लिए पूरी उम्मीद हो गए। FBCCI के साबिक नायब सदर मिर्जा इश्तियाक बेग का कहना है कि पाकिस्तान के डिफॉल्ट की बातें अब दम तोड़ चुकी। हुकूमत के सख्त फैसलों के असरात आना शुरू हो गए हैं, जिसकी मिसाल मुल्क की तारीख में पहली बार रुपए की कदर में इतनी तेजी से होने वाला इजाफा है। उन्होंने डॉलर बहुत जल्द $200 तक आने का दावा भी किया। कभी पाकिस्तान की तारीख में इतनी तेज़ी से पाक रुपीस अप्रिशिएट नहीं हुआ। वो रुपीस जो कंटिन्यूसली डिप्रिसिएशन की तरफ जा रहा था और हमने तमाम हदें जो थी वो कर ली हैं, वो एक एक दिन में 10-10 रुपये 8-8 रुपये नीचे आया है। और अभी भी मैं आपको बतलाता हूँ कि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम 200 तक इसको ले आएंगे। मिर्जा इश्तियाक बेग ने कहा कि रुपए की कदर में कमी की अहम वजह बढ़ता करंट अकाउंट खसारा था, जो अब कंट्रोल में आने लगा है। बहुत जल्द IMF से पाकिस्तान को $1 अरब 20 करोड़ मिल जाएंगे। IMF के बाद दीगर ममालिक से भी $4 अरब मिलेंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप सुनेंगे कि IMF के साथ जो हमारा मुआहदा था वो तय पा गया है और विद इन ए वीक टाइम हमें पाकिस्तान से एक 1.27 बिलियन जो हैं वो मौसूल हो जाएंगे। मिर्जा इश्तियाक बेग ने कहा कि आलमी मार्केट में खाम तेल और अशिया सर्फ की कीमतें कम होना शुरू हो गई हैं। RLNG और फर्नेस ऑयल की कीमत कम होने से बिजली की कीमत में भी कमी आना शुरू हो जाएगी। कैमरामैन सज्जाद के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। कराची ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोकर दोबारा PHF के सदर मुंतखब हो गए हैं। कहते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाएंगे जिसके बाद पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कराची में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के इंतखाबात हुए, जिसमें खालिद सज्जाद खोकर सदर और हैदर हुसैन नए सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। शाहिद परवेज भंडारा को खजानची मुंतखब किया गया। इलेक्शन कमीशन ने तीनों नुमाइंदों के नाम पेश किए। तीनों नुमाइंदे बिला मुकाबला मुंतखब हुए। कांग्रेस इजलास में तमाम मेंबरान ने मुत्तफिका तौर पर उन्हें मुंतखब किया। इलेक्शन के बाद कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खालिद सज्जाद खोकर ने बताया कि अपनी जेब से हॉकी पर पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाएंगे जिससे पैसा खुद आएगा। सिंध गवर्नमेंट ना होती आपका काम चलता ना। ये जो स्टेडियम है, मैंने 32 साल के एफर्ट के बाद 32 साल लोगों ने एफर्ट किया, नहीं हुआ, बंद हो गया था। मैंने ये लीज ली है, आज उसके ऊपर आपका 1 अरब और 1.5 अरब रुपया आपको रिलीज हुआ है और इसकी लागत आनी है, जिसमें से इस वक्त आपको 42 करोड़ रुपया जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने रिलीज कर दिया हुआ है। नए सेक्रेटरी हैदर हुसैन ने कहा कि दावे नहीं कर रहा, मगर 1 साल में नताइज सामने आ जाएंगे। यहाँ पर इतना आसान मुझे लग रहा है जैसे मुझे लग रहा है कि फर्स्ट क्लास में आ गया हूँ। तो इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा और ज्यादा नहीं 1 साल में रिजल्ट देखिएगा और अच्छा रिजल्ट नहीं होगा तो फिर खुद कर जाएंगे। सदर ने कहा कि अगले हफ्ते PHF के पास पैसे आ जाएंगे, जिसके बाद कोचेस और प्लेयर्स को पैसे दिए जाएंगे।